والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج انسان روزی روٹی کے اعتبار سے کتنا پریشان ہے، اور اس پریشانی کی وجہ ہم خود ہیں. رزق کے راستے جہاں سے اللہ رزق اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ راستے ہم لوگوں نے اپنے عملوں سے بند کر رکھے ہیں. اگر وہ راستے کھل جائیں، وہ عمل ہماری زندگیوں کے اندر آ جائیں، تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، خاص طور سے ماننے والوں کو، کبھی بھی روزیوں کی کمی کے اندر نہ رہنے دے. اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے 17 چیزیں علماء نے ترتیب دی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، بتلائی جا رہی ہیں. اس میں سے 3 چیزوں کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے آئی. پہلی یہ کہ اگر رزق چاہتے ہو، اس میں برکتیں چاہتے ہو، تو اپنے گھر والوں کو نمازوں کا حکم کرو. خود بھی نمازوں کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں کا حکم دو. دوسرا بتلایا کہ استغفار کی پابندی کرو، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، معافی مانگتے رہو. اپنی زبان پر استغفار کی کثرت رکھو، زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جو بھی رزق دے، اس میں سے اللہ کے نام کا نکالتے رہو، کیونکہ دینے والا اللہ ہے. اس کے نام کا نکالو گے، اس کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کرو گے تو وہ اور عطا کرے گا، اور اس کے نام پر ہی خرچ نہیں کرو گے، اس نے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں سے کنجوسی برتو گے تو اپنے مال کو روک لے گا. دینے والا تو وہی ہے. اس کے بعد چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ جو اپنے سے کمزور ہیں، جو اپنے سے کمتر ہیں، جو اپنے سے غریب ہیں،
ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو۔ اگر روزی چاہتے ہو، روزی کی برکتیں چاہتے ہو، روزی کے اندر ترقی چاہتے ہو، کاروباری ترقی چاہتے ہو، تو جو اپنے ماتحت لوگ ہیں، جن کی اللہ نے تمہارے سروں پر ذمہ داری رکھی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ کارخانوں کے مالک ہو گئے، تمہارے یہاں نوکر آ کر کے کام کرتے ہیں، کاریگر آ کر کے کام کرتے ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھو۔ آج تو مالک ہے، ہو سکتا اللہ کل اسے مالک بنا دے، تجھے اس کی جگہ کر دے۔ اور ایسا ہو رہا ہے، ہوتا نہیں بلکہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، حضرت جو لوگ میرے یہاں کام کرتے تھے میں ان کے یہاں کام کر رہا ہوں، ایسا وقت آ گیا ہے۔ جو میرے یہاں نوکری کرتے تھے، کاریگری کرتے تھے، اب ایسا وقت آ گیا کہ مجھے خود ان کے یہاں جا کر کے کاریگری کرنی پڑ رہی ہے، نوکری کرنی پڑ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کو حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے نیچے، ہمارے ماتحت ہو کر کے لوگ کام کرتے رہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اپنے لہجوں کے اندر نرمی لے کر کے آؤ، ان کی طرف سے اپنے ماتھوں کو، اپنی پیشانی کو ٹھیک رکھو، ان کے لیے جب ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے ان کی مزدوری ان کے ہاتھوں میں پہنچ جانی چاہیے۔ اگر اپنے رزق کے اندر بڑھوتری چاہتے ہو، اگر اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، تو جو اپنے سے کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ خبردار اگر تکبر دکھانے کی کوشش کری، اگر تم نے ان کے سامنے اپنی ناک پر نخرہ رکھ کر کے بات کرنے کی کوشش کری، یا تکبر کے ساتھ ان سے لہجوں میں بات کی، تو میرے اللہ کو دیر نہیں لگتی کہ تجھے آسمان سے زمین پر پٹک دے۔ اس لیے چوتھا دروازہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور خاص طور سے میرے اور آپ کے آقا اور تمام کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہارے کاروباروں کو ترقی دے دے، اللہ تمہاری روزیوں کے اندر برکتیں دے دے، تو تم اپنے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، اور خالی اپنے کارخانے والے نہیں، خالی اپنی فیکٹری والے نہیں، خالی اپنے ماتحت نہیں، بلکہ اگر محلے کے اندر بھی غریب لوگ رہتے ہیں، کمزور لوگ رہتے ہیں، بیچارے کرایہ دار رہتے ہیں، یا اسی طریقے سے مسکین اور فقر و فاقہ والے مدمست اور مگن رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے خالی غریب وہی نہیں بلکہ جو جان کے اعتبار سے کمزور ہیں، جو مال کے اعتبار سے کمزور ہیں، اسی طرح اپنی تعلیم اور لیاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں، فرمایا ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ خبردار اگر اپنی نظروں کے اندر ان کو گرا ہوا سمجھا، یا ان کو بالکل دبا اور کچلا سمجھا، اگر تم کسی کو حقیر سمجھو گے، جانتے ہو یہ تمہاری نظروں میں حقیر ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے یہ کمزور ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کا درجہ بڑا بلند ہو۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ بعض بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، پراگندہ حال ہوتے ہیں، لوگ اگر وہ دروازوں پر لوگوں کے چلے جائیں تو لوگ ان کو دھکے دے دیں، اگر ان کو مشورے میں بلا لیا جائے تو ان سے کوئی مشورہ نہ لے، ان کی رائےوں پر دھیان نہ دیا جائے۔ لیکن کیا فرمایا، یہ صرف لوگوں کی نظروں میں ہے، ورنہ ایسے لوگوں کا اللہ کی نظر میں کون سی عزت ہے؟ اتنی عزت ہے کہ اگر وہ اپنے اللہ پر کوئی قسم اٹھا لیں تو میرا اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک کیس لایا گیا، ایک مقدمہ لایا گیا، ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا، اور شریعت کا قانون، شریعت کا قاعدہ یہ ہے
کہ اب اس کا بھی دانت توڑا جائے۔ لہذا اللہ کے نبی کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ اس عورت کا بھی وہی دانت نکالا جائے جو اس عورت کا اس نے نکالا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا، چنانچہ ایک صحابی طیش میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں اس عورت کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا مسکرائے، ہاں ان کا اعتراض نہیں تھا، اللہ کے نبی کے فیصلے کے خلاف نہیں کھڑا تھا، بلکہ وہ صرف محبت میں کھڑے ہوئے اور قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا، یا نبی اللہ میں قسم کھاتا ہوں اس عورت کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ چنانچہ جہاں ایک قانون یہ ہے کہ جو انگ توڑا گیا اس کے بدلے وہی انگ کاٹا جائے گا، چنانچہ لیکن دوسرا قانون یہ بھی ہے کہ اگر صاحب معاملہ اگر گھر والے معاف کر دیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جیسے ان صحابی نے کھڑے ہو کر کے کہا، اللہ کے نبی اس عورت کا دانت نہیں توڑا جائے گا، چنانچہ میرے آقا مسکرائے، فوراً جس عورت کا دانت توڑا گیا تھا وہ کھڑی ہوئی اور فرمایا، اللہ کے محبوب میں نے اپنی بہن کو معاف کر دیا ہے۔ پھر فرمایا تھا میرے آقا نے کہ کچھ ہیں اللہ کے نیک بندے ایسے کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں کسی بھی چیز کی تو میرا اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے، میرا اللہ ان کی بات رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ ایسے لوگ زیادہ تر کمزوروں میں، مسکینوں میں، اسی طریقے سے جن کے اندر کوئی ریاکاری نہیں، جن کے اندر نہ مکان کا دکھلاوا، نہ کاروبار کا دکھلاوا، نہ گاڑیوں کا دکھلاوا، نہ کپڑوں کا دکھلاوا، ایسے لوگ انہی کے اندر ملیں گے۔ اور جانتے ہو کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ جن لوگوں کو تم غریب سمجھتے ہو، جن لوگوں کو تم کمزور سمجھتے ہو، جن لوگوں کو سمجھتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یاد رکھنا اللہ رب العزت مالداروں کے کاروبار انہی کمزوروں کی وجہ سے چلاتا ہے، انہی غریبوں کی وجہ سے چلاتا ہے، انہی کے صبر کی وجہ سے اللہ مالداروں کو روزی دیتا ہے، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ مالداروں کو ترقی دیتا ہے، ہاں انہی کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پینے کی وجہ سے اللہ ان کو ترقیات سے نوازتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے غریبوں کی قدر کیا کرو، اپنے کمزور پڑوسیوں کی قدر کیا کرو، اپنے غریب رشتہ داروں کی قدر کیا کرو۔ جانتے ہو اللہ دنیا میں بھی تمہیں ان کی وجہ سے روزی دیتا ہے، اور کل قیامت کے میدان میں ہاں یہ دنیا کے غریب کمزور جنت میں مالداروں سے 40 سال پہلے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے 40 نہیں بلکہ 500 سال پہلے جنت کے اندر یہ غریب اور کمزور چلے جائیں گے۔ کن لوگوں کی بات کرتے ہو؟ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ کبھی جنت اور جہنم آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، آپس میں مناظرہ کرتے ہیں۔ جنت کہتی ہے میں تجھ سے بہتر ہوں، جہنم کہتی ہے میں تجھ سے بہتر ہوں۔ لہذا جب معلوم کیا گیا اے جہنم تو کیوں کہتی ہے، اے دوزخ تو کیوں کہتی ہے، وہ کہتی ہے تو دیکھتی نہیں کہ میرے اندر دنیا کے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگ آئیں گے، دنیا کے بڑے بڑے متکبر آئیں گے، دنیا کے بڑے بڑے طاقتور، ہاں جن کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوگا، اپنے مال پر گھمنڈ ہوگا، وہ تمام کے تمام میرے اندر آئیں گے، میں کیوں نہ فخر کروں۔ اور پھر جانتے ہو جنت کیا کہتی ہے؟ مجھے اس چیز پر فخر ہے کہ میرے یہاں غربا آئیں گے، مسکین آئیں گے، کمزور آئیں گے، فقیر آئیں گے، میرے اس کے اندر وہ آئیں گے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے۔ ان دونوں کے مکالمے کے بعد میرا اللہ دونوں کو ہی ٹھیک کہتا ہے، جن بندوں پر میری رحمتیں نازل ہوں گی وہ جنت میں ہیں، اور جن بندوں پر میرا غصہ نازل ہوگا وہ جہنم سے بھر دیے جائیں گے، جہنم ان سے بھر دی جائے گی۔ لہذا میرے بھائی اسی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، چنانچہ میرے اور آپ کے آقا کو بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بھی غریبوں کے تعلق سے، کمزوروں کے تعلق سے، یہاں تک کہ جو پسماندہ لوگ ہیں، مظلوم لوگ ہیں، ان کے تعلق سے میرے اور آپ کے اللہ بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور آج بھی قرآن کریم کی آیتیں گواہ ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम, इनके पास आपको रोक करके रखना है अपने आप को। हाँ, इनके लिए, कौन लोगों के लिए आपको रोक के रखना है? कौन है वो लोग जो सुबह शाम अल्लाह का तज़किरा करते हैं, जो सुबह शाम अपने अल्लाह को याद करते हैं। हाँ, उनसे तुम तजावुज़ न करना, अपनी आंखों को उनसे न फेरना। ये किसको मेरे और आपके अल्लाह हुक्म दे रहे हैं? अपने महबूब को दे रहे हैं, अपने महबूब को दे रहे हैं। हालांकि जो कमज़ोरों को सीने से लगाते थे, गरीबों को सीने से लगाते थे, पसमानदा लोगों को, हाँ, इसी तरीके से मजलूमों को सीने से लगाते थे, लेकिन फिर भी मेरा और आपका अल्लाह आपको अपने आप को इन्हीं में रोक करके रखना है। बल्कि एक मर्तबा तो मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, मक्के के बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हैं। ईमान वाले नहीं हैं, ईमान के अंदर दाखिल नहीं हुए, बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं। चुनाचे इसी दरमियान में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना सहाबी हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। नज़र नहीं आता, उन्हें नज़र भी नहीं आया कि कौन बैठे हुए हैं। जाकर के अल्लाह के नबी से मसला मालूम करने की कोशिश की, लेकिन मेरे आका ने ध्यान दिल के अंदर आया, मैं अपने सहाबी को बाद में भी मसला बता दूंगा, इस वक्त में ये लोग बैठे हुए हैं, इनसे गुफ्तगू कर ली जाए। सिर्फ हल्का सा इशारा हुआ, अब्दुल्ला ज़रा सी देर रुक जाइए, लेकिन ये रोकना मेरे अल्लाह को पसंद नहीं आया। फौरन आयतें उतर करके आई, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युदरीका लअल्लहु यज़क्का औ यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा। ऐसा नहीं कर सकते आप। वो तालिब बन करके आया है, वो तलब लेकर के आया है, आप उसको पहले बताइए। ये लोग अभी ईमान के अंदर नहीं आए, अगर ईमान कबूल भी नहीं करेंगे, इसी तरह मर जाएंगे, तब भी महबूब आपकी पकड़ नहीं होगी। लेकिन ये जो आपसे पहले बात करने के लिए आए हैं, आप इनसे बात कीजिए पहले। ये मेरे महबूब को भी रोक दिया गया। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को बड़ी सारी जगहों पर इसी तरीके से गरीबों की, कमज़ोरों की, मज़लूमों की, जिनको मैं और आप हकीर समझते हैं, नादार समझते हैं, उनकी मेरे और आपके महबूब ने बड़ी बड़ी जगह तारीफ़ें फरमाई हैं। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द आप ज़रा देखेंगे कि मालदारों का जमघटा इतना नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी के पास गरीब और कमज़ोर लोग हैं। अल्लाह के नबी की खिदमत में गरीब और कमज़ोर लोग हैं। न मालदारी का फ़र्क है, न गरीबी का फ़र्क है, न गोरे का फ़र्क है, न काले का फ़र्क है, इसी तरीके से न अरबी का फ़र्क है, न आजमी का फ़र्क है, बल्कि मेरे और आपके आका की खिदमत में सबसे ज़्यादा गरीब और कमज़ोर हैं, और सबसे ज़्यादा जान लुटाने वाले भी, और सबसे ज़्यादा मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले भी यही लोग हैं। हालांकि तमाम के तमाम सहाबा मेरे और आपके आका से मोहब्बत करते थे, मेरे और आपके आका पर जान लुटाया करते थे। अरे कहाँ तक तुम्हें आका की, हाँ, सहाबा से मोहब्बत की गुफ्तगू सुनाओ, हाँ, किसी सहाबी का एक का तज़किरा नहीं, बल्कि ये वक्त नाकाफी हो जाए। आओ तुम्हें बतलाता चलूं किस तरीके से सहाबा मोहब्बत किया करते थे। एक सहाबी हैं हज़रत तलहा बिन बारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के सहाबी हैं। वक्त की ज़्यादा किल्लत है, इसलिए गुफ्तगू तवील नहीं, ज़रा सुनते चले जाएं। कौन है हज़रत तलहा बिन बारा? हाँ, ये वही सहाबी हैं कि जब मेरे और आपके आका मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ गए हैं, तो मदीने से बहुत सारे सहाबा इकराम अल्लाह के नबी के इस्तकबाल में आए थे। उन्हीं में हज़रत तलहा बिन बारा भी हैं, लेकिन मैं मुख्तसर करता चला। एक मरतबा अल्लाह के नबी को मालूम हुआ, आप मालूम करते हैं ये हज़रत तलहा अक्सर नमाज में आगे नमाज पढ़ते हैं, और उनकी एक जगह मुतय्यन थी कि यहाँ हज़रत तलहा पहले आकर के बैठ जाते हैं। लिहाजा एक दिन ऐसा हुआ, मेरे और आपके आका को फजर में हज़रत तलहा नजर नहीं आए, ज़ोहर में नजर नहीं आए, असर में नजर नहीं आए। जब एक जगह एक आदमी खड़ा होता है वो नजर न आए, तो मेरे और आपके आका ने मालूम किया, ए मेरे सहाबा, मेरा तलहा कहाँ है? नजर नहीं आता, मेरे तलहा के क्या हालात हैं? चुनाचे लोगों ने बतलाया, अल्लाह के नबी, हज़रत तलहा तो बड़े बीमार हैं। मेरे और आपके आका असर की नमाज के बाद
दो चार सहाबों को लेकर के हज़रत तलहा के घर पर पहुँचे। देखते हैं कि हज़रत तलहा बीमार हैं और शदीद बीमार हैं, इस कदर बीमार हैं कि बेहोशी की हालत है, कुछ मालूम नहीं मैं दुनिया के अंदर हूँ, गशी की हालत है, कुछ मालूम ही नहीं है। चुनाचे मेरे और आपके आका जाते हैं, जाकर के दुआएं देते हैं और घर वालों से कहते हैं, ओ तलहा के घर वालों, अगर रात में किसी भी वक्त में हज़रत तलहा इस दुनिया से रुखसत हो जाएं तो मुझे जाकर के ख़बर करनी है, ताकि मैं इनकी तजहीज़ का इंतज़ाम करूँ, तकफीन का इंतज़ाम करूँ, तदफीन में हिस्सा लूँ, लिहाजा तुम्हें जाकर के मुझे खबर करनी है। इसी तरीके से पूरी रात गुजर गई। जानते हो हज़रत तलहा फिर नज़र नहीं आए। अल्लाह के नबी ने देखा कि हज़रत तलहा के घर वाले हाँ मस्जिद के अंदर भरे हुए हैं। मेरे और आपके आका ने सलाम फेरा और फेर करके कहा, ओ तलहा के घर वालों, मेरे तलहा के क्या हाल हैं? चुनाचे तमाम घर वालों ने फरमाया, अल्लाह के नबी वो तो रात में दुनिया से रुखसत हो गए थे, वो तो रात में दुनिया से चले गए थे। अल्लाह के नबी की आंखें सुर्ख हो गई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं तजहीज़ का इंतज़ाम करता, मैं तकफीन का इंतज़ाम करता, मैं तदफीन में हिस्सा लेता, तुमने मुझे बतलाया क्यों नहीं? चुनाचे तमाम घर वाले रो पड़े और फरमाने लगे, या नबी अल्लाह, आप जब उनको देख करके वापस आ गए थे तो हज़रत तलहा की आँख खुल गई थी, हज़रत तलहा को होश आ गया था। हाँ हमने बतलाया कि तुम्हें अल्लाह के नबी अभी देख करके वापस हुए हैं और ये कह करके गए हैं। तो हज़रत तलहा ने फरमाया, ओ लोगों, अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं रात के किसी भी हिस्से में, हाँ मेरे महबूब को तकलीफ न देना कि मेरे इंतकाल की वजह से मेरे महबूब की नींद कमज़ोर हो जाए। मेरे महबूब को आप तकलीफ न देना, वो आराम से उठ करके आएंगे, वो अपनी नींद को कुर्बान करके आएंगे, मुझे फ़ौरन तदफीन कर दी जाए, मेरी फ़ौरन तजहीज़ कर दी जाए जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं। महबूब को न बुलाना, मेरे आका को न बुलाना, ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। आज तो हम अपने अइम्मा से, इमामों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर नमाज न पढ़ाई तो उसके पीछे नमाज ही नहीं होगी हमारे इस ख़ानदान वालों की। अगर ऐलान भी नहीं किया कि हमारे यहाँ इंतकाल हो गया है तो ये इमाम हमारा नहीं है, किसी और का है। ये मोहब्बत के तकाज़े मेरे और आपके हैं। इसलिए मेरे भाई, इन कमज़ोरों की तहक़ीर न कीजिए, इन गरीबों की तहक़ीर न कीजिए। मेरे और आपके आका अपने सहाबा से और सहाबा मेरे और आपके आका से बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। कमज़ोर हों, गरीब हों, नादार हों, कोई भी हो, लेकिन मेरे और आपके आका सबसे मोहब्बत फरमाया करते थे। अगर कहीं कोई ऐसी भूल या इसी तरीके से कोई ऐसा मसला मेरे अल्लाह को दिखाई दिया, फ़ौरन मेरे अल्लाह ने टोक और रोक फरमाई। और हमेशा मेरे अल्लाह ने कमज़ोरों की तरफदारी की, मेरे अल्लाह ने भी गरीबों की तरफदारी की, उनके सब्र की वजह से, हाँ उनके मिस्कीनी की वजह से। लिहाजा आज मैं और आप किस तरीके से अपने से कमज़ोर लोगों को हकारत से देखते हैं, किस तरीके से उनसे बात करते हैं। मेरी और आपकी ज़बानों पर हाँ तकब्बुर भरे लहजे होते हैं, हमारे माथों में गरीब को देख करके सलवटें आ जाती हैं। ओ अल्लाह के नेक बंदो, आओ अपने महबूब के तज़किरे करता चलूं। जो लोग इस वक्त में मजनून और दीवाने होते हैं, मैं और आप तो उनसे भी बात करना पसंद नहीं करते, उनके पास भी बैठना पसंद नहीं करते, उनको अपने दस्तरखान पर बिठाना भी पसंद नहीं करते। आओ तुम्हें अपने महबूब के दर ले चलूं। जानते हो एक औरत है मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जो दिमाग से कमज़ोर है और सिर्फ बड़बड़ाती फिरती है, न उसे कपड़े पहनने का सलीका है, न उसे रुकने और घूमने का सलीका है। हाँ कोई उसको मुंह नहीं लगाता, जिसके भी पास जाती है बातें बनाती रहती है। हर कोई इधर को रास्ता इख्तियार कर लेता है, कोई इधर को रास्ता इख्तियार कर लेता है। मेरे और आपके आका एक मर्तबा उस औरत के पास खड़े हुए हैं
वो अल्लाह के नबी से बात करती जा रही, करती जा रही, करती जा रही, और मेरे और आपके आका उसका जवाब देते जा रहे। हालांकि मदीने के लोग जानते हैं मजनू हैं, मदीने के लोग जानते हैं कि ये पागल है, इसके दिमाग के अंदर कमजोरी है। चुनांचे मेरे और आपके आका बारहा उसकी बात को सुन रहे। वक्त काफी हो गया, वक्फा काफी हो गया। एक सहाबी आकर के कहने लगे, या नबी अल्लाह, क्यों इस औरत के चक्कर में अपना वक्त जाया कर रहे हैं, क्यों इस औरत के चक्कर में खड़े हुए हैं? जानते हो क्या फरमाया था मेरे आका ने? और मेरे सहाबा, इस औरत की मदीने में सुनता कौन है? अगर मैं भी ना सुनूं तो कौन सुनेगा इसकी? अगर मैं भी ना सुनूं तो कौन सुनेगा इसकी? आज तो मैं और आप जो ज़रा सा दिमाग का कमज़ोर होता है उसे अपने बाहर से, दर से, घर से भगाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते। लिहाजा इसीलिए तो ये आदमी कमज़ोर है, ये आदमी गरीब है, ये आदमी नादार है, ये आदमी हमारे किस काम का है, ये आदमी हमारे किस फ़ायदे का है। लिहाजा आज तो हम लोगों से बात भी फ़ायदों की वजह से करते हैं, मतलब की वजह से करते हैं। लिहाजा ओ अल्लाह के दीवानों, अल्लाह के नेक बंदों, ये जितने कमज़ोर मेरे और आपके मातहत हैं, अल्लाह कल इनके बारे में मुझसे और आपसे सवाल करेगा, मुझसे और आपसे जिम्मेदारी के बारे में मालूम किया जाएगा। लिहाजा आज मैं और आप इन लोगों का ख्याल नहीं करते, हालांकि रोजी रोटी आपकी इन्हीं की वजह से है, कारोबारी तरक्की इन्हीं की वजह से है। खबरदार अपने जुमलों को ठीक रखे, वरना फरमाया मेरे और आपके आका ने कि जिस तरह जन्नत को मिस्कीन से भर दिया जाएगा, गुरबा से भर दिया जाएगा, कमज़ोरों से भर दिया जाएगा, इसी तरीके से नादारों से भर दिया जाएगा। इसी तरीके से जन्नत में तमाम के तमाम कमज़ोर होंगे, लेकिन उसी के बिलमुकाबिल अल्लाह जहन्नम को किन लोगों से भरेगा? मेरे आका के जुमले आज भी मेरे और आपकी जहनों के अंदर होने चाहिए। फरमाया मेरे और आपके आका ने, कुल्लु तुल्लिन जवाजिन मुस्तकबिरिन, क्या फरमाया मेरे और आपके आका ने? ये तीन किस्म के लोग होंगे जो जहन्नम के अंदर भर दिए जाएंगे, जो जहन्नम के अंदर डाल दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी वो तीन लोग कौन हैं? फरमाया कुल्लु उतुल्लिन, जिसके माथे पर घमंड की वजह से सलवटें पड़ी रहती हैं, सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, हमेशा अपनी ताकत के घमंड में, मालदारी के घमंड में, इसी तरीके से अपनी बिरादरी के घमंड में, इज्जत के घमंड में, गरीब लोगों के सामने जब भी पहुंचता है तो उसके माथे पर सलवटें पड़ी हुई होती हैं। फरमाया मेरे आका ने, ऐसे इंसान को अल्लाह देर नहीं लगाएगा, फौरन जहन्नम के अंदर डाल देगा। जवाजिन, जिसके लहजों में तकब्बुर होगा, जिनकी बातों में तकब्बुर होगा, जो अपने से कमजोरों को हमेशा तकब्बुर से गुफ्तगू करते होंगे, जो अपने से मातहत को हमेशा तकब्बुर से गुफ्तगू करते होंगे। फरमाया जिनके लहजों में बड़ाई टपकती होगी, जो अपने अल्लाह से जर्रा बराबर भी नहीं डरते होंगे और अपनी बात को ऊंचा रखते होंगे, गरीबों की कोई परवाह नहीं, कमजोरों की कोई परवाह नहीं, जो हमने कह दिया वही अटल है, जो हमारी जबान से निकल गया वही अटल है, देख लिया जाएगा जो कोई सामने आएगा, जो मेरी जबान से निकल गया वही अटल है। फरमाया मेरे और आपके आका ने कि ये लहजे वाला, जिसके लहजे में घमंड होगा, मेरा अल्लाह इससे भी अपनी जहन्नम को भर देगा। फिर फरमाया मुस्तकबिरिन, जिसके अंदर तकब्बुर की जरा सी भी अलामत होगी, चाहे बनावट में, चाल में, कपड़े में, ढाल में, किसी भी एतबार से जिसके अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, कुल्लु मुस्तकबिरिन, फरमाया मेरे और आपके आका ने, हर मुतकब्बिर से अल्लाह जहन्नम को भर देगा, हर तकब्बुर वाले से अल्लाह जहन्नम को भर देगा। इसीलिए तीन इंसानों की निशानदही फरमाई कि जिसके माथे पर घमंड की वजह से हमेशा सिलवटें, जिसकी जबान में घमंड की वजह से हमेशा तलखी, इसी तरीके से जिसकी जबान के साथ साथ हर चीज के अंदर तकब्बुर टपकता होगा, अल्लाह को कोई गर्ज नहीं, इससे जहन्नम को भर देगा।
इसीलिए फरमाया मेरे और आपके आका ने कि अल्लाह फरमाते हैं अल-किब्रु रिदाई, ये तकब्बुर मेरी चादर है, ये तकब्बुर मेरी चीज है, ये बड़ाई सिर्फ मुझको सजती है, ये बड़े बोल सिर्फ मैं बोल सकता हूँ, ये बड़ी बात सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अगर किसी ने मेरी चादर को खींचने की कोशिश की तो औंधे मुंह जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ये तकब्बुर तो मेरी चीज है, ये बड़े बोलों का लफ्ज सिर्फ मेरा हिस्सा है। कोई इंसान खबरदार अपनी जबान से बड़ा बोल बोलने की कोशिश ना करे। आज हमारा हाल यही तो हो चुका है, कोई कदर नहीं किसी की, कोई कदर नहीं किसी की। हमारे कारोबार जो चल गए 2-4 दिनों से, हमारे काम जो चल गए 2-4 दिनों से, अब हमारे सामने किसी की इज्जत नहीं, कोई हमारे सामने बोलने वाला नहीं। हम हर चीज को पैसे से खरीद सकते हैं, हम हर चीज को पैसे से तौल सकते हैं। ओ अल्लाह के नेक बंदे, मेरे अल्लाह के यहाँ जरा सी देर नहीं होती, जरा सी देर नहीं होती। तुझे आसमान से जमीन पर कब पटक दे तुझे खबर भी नहीं होगी, तुझे कब अमीर से भिखारी बना दे तुझे कभी खबर नहीं होगी। जो तेरे यहाँ काम करते तो कल उनके यहाँ काम करने लगे। मेरे अल्लाह के यहाँ कोई देर नहीं होती। इसलिए अपने जुमलों को ज़रा संभाल करके अपनी ज़बानों से निकाला करो। ज़रा इस ज़मीन पर ज़रा ठीक से चला करो। जब तू इस ज़मीन पर अकड़ करके चलता है तो ये ज़मीन कहती है चल ले, कल तू मेरे अंदर आएगा, तेरी खबर लेने वाली तो मैं हूँ। तकब्बुर के साथ चलता है, सीना चौड़ा करके चलता है, तेरे अल्फाज से घमंड दिखाई देता है, सबकी इज्जतों को पामाल करता है, सबको जिल्लत के साथ देखता है, सबकी बातों को जिल्लत भरे लफ्जों से फेंकता है। तेरी नजरों में किसी की कोई कदर नहीं, न उलमा की, न गरीब साथियों की, न दावत और तबलीग के साथियों की, तेरी नजरों में किसी की कदर नहीं। तू इतना बड़ा आदमी हो चुका है। इसीलिए फरमाया मेरे और आपके आका ने कुल्लु तुल्लिन जव्वाजिन मुस्तकबिरिन, अल्लाह इनसे जहन्नम को भर देगा, अल्लाह इनसे जहन्नम को भर देगा। मालदारों को नहीं, हाँ अगर मालदारी की वजह से तकब्बुर करता है, मालदारी की वजह से तकब्बुर करता है। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है, जो खानदानी रईस हैं, मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। वरना खानदानी रईस अपनी ज़बानों के अंदर नरमी रखते हैं, अपने से छोटों की कदर करते हैं, अपने से कमज़ोरों की इज्जत करते हैं, सफ़ेद दाढ़ी वालों के सामने ज़बान दराजी नहीं करते, अपने उलमा के सामने ज़बान दराजी नहीं करते, अपने उलमा के मशवरों से चलते हैं, अपने उलमा की दिलों में मोहब्बत रखते हैं। ये तेरा लहजा इशारा कर रहा है कि तेरे पास दौलत कल परसों की आई हुई है, इसीलिए तो लोगों को अपने भरम में रखना चाहता है। इसलिए मेरे भाई, ये कमज़ोर, ये गरीब, ये पसमानदा, ये मातहत, इन लोगों की कदर करो अगर और तरक्की चाहते हो। इसलिए फरमाते उलमा, अगर तुम चाहते हो कि रोज़ियों के अंदर बरकतें हों, रोज़ियों के अंदर तरक्की हो, रोज़ियों के अंदर बढ़ोतरी हो, तो फरमाया अपने से नीचे अपना काम करने वालों की इज्जत करो, अपने मातहत लोगों के साथ नरमी का मामला करो। लिहाजा जिस तरीके से मेरे और आपके आका फरमाया करते थे, ओ अल्लाह के नेक बंदो, आओ तुम्हें बतलाता चलूं। एक सहाबी हैं जिनको मैं और आप हजरत ज़ाहिर के नाम से जान सकते हैं। ये कौन है? हजरत ज़ाहिर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ, एक गांव के बेचारे गरीब हैं और शक्ल से बिल्कुल काले हैं और गांव के रहने वाले बिल्कुल कमज़ोर देहाती हैं। अल्लाह के नबी उनसे कभी कभी बड़ी मजाक फरमाया करते थे, लेकिन लोग उनकी ज़्यादा कदर नहीं किया करते थे। गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है। चुनाचे एक मरतबा बाजार के अंदर पहुंचे और बाजार के बीचों बीच खड़े हैं। मेरे और आपके आका ने देखा, अरे ज़ाहिर बाजार के अंदर खड़े हुए हैं। चुनाचे आका पीछे से पहुंचे और जाकर के हजरत ज़ाहिर की कौली को भर लिया और फिर उनकी आंखों पर हाथ रख करके बड़ी देर तक खड़े रहे। हजरत ज़ाहिर
फरमाते हैं कि मैंने बहुत हाथ छुड़ाने की कोशिश की कि मेरे साथ कौन इस बाजार में मजाक कर सकता है, मैं गरीब कमज़ोर आदमी, मैं काला कलौटा आदमी, मेरे साथ कौन मजाक कर सकता है। जब काफ़ी देर हो गई, चुनाचे अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया कि ओ लोगो कोई मेरे इस गुलाम को खरीदने वाला है, कोई है जो मेरे इस गुलाम को खरीदे। हजरत ज़ाहिर फरमाते हैं पहले तो मैं अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने देखा अरे ये तो मेरे बदन को पकड़ने वाले, मेरी आंखों को खींचने वाले कोई और नहीं मेरे आका हैं, कोई और नहीं मेरे महबूब हैं। चुनांचे फिर मैंने अपने हाथों को हटा लिया और हटाने के बाद फिर मैं अपने आका के और करीब होना शुरू हो गया। मेरे आका और कौली भर लें, मेरे आका और मुझे मजबूत पकड़ लें। चुनांचे हाँ अल्लाह के नबी ने फरमाया है कोई मेरे गुलाम को खरीदने वाला। चुनांचे हजरत ज़ाहिर फरमाते या नबी अल्लाह, मुझ जैसे काले कलोटे गुलाम को कौन खरीदेगा, मुझ जैसे गरीब की कौन कीमत लगाएगा। फरमाया मेरे आका ने, ओ ज़ाहिर क्यों कहते हो इन लोगों की नजरों में तुम्हारी कदर हो या ना हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारी बड़ी कदर करता है, अल्लाह तुम्हारी बड़ी इज्जत करता है, अल्लाह की नज़रों में तुम्हारी बड़ी इज्जत है, लिहाजा अपने आप को कमज़ोर न समझो, अल्लाह के नज़रों में तुम्हारी बड़ी कदर व कीमत है। लिहाजा फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हो गए और अल्लाह के नेक बंदो, तो इस तरीके से मेरे और आपके आका गरीबों की इज्जत और उनके साथ हुस्न सुलूक और इसी तरीके से उनके साथ मज़ा फरमाया करते थे ताकि इनका दिल न टूटे, ताकि मुझसे दूर ना हो। लेकिन साथ साथ में फरमाया करते थे कि जानते हो जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा कौन लोग होंगे, अल्लाह के नबी, कौन लोग कि जिनके मिजाजों के अंदर तकब्बुर होगा, जिनके लहजों के अंदर तकब्बुर होगा, जिनके चलनों के अंदर तकब्बुर होगा, जिनकी बातों के अंदर तकब्बुर होगा और वो अपने से निचले वाले लोगों को हकीर समझते होंगे, अपने से निचले लोगों को जलील और रुस्वा समझते होंगे। ऐसे लोगों से अल्लाह जहन्नम को भर देगा जो अपने मातहतों की कदर नहीं करते होंगे, जो अपने से जिनकी जिम्मेदारी अल्लाह ने उन पर लगा रखी है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं होंगे बल्कि उनको जगह जगह जलील करने की कोशिश करते होंगे। फरमाया मेरा अल्लाह उनसे अपनी जहन्नम को भर देगा। वरना मेरे और आपके अल्लाह के नबी किस तरीके से मोहब्बत फरमाया करते थे। मस्जिद नबवी में एक औरत आया करती थी, बेचारी वो भी काली कलौटी, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर के सफाई कर दिया करती थी, सुथराई कर दिया करती थी। अल्लाह के नबी उसको बड़ा देखते थे, ये बहन कोई आती है सफाई करके चली जाती है अल्लाह के नबी को वो कभी कभी अल्लाह के नबी की नज़रों में रहती थी। एक मरतबा सहाबा के बीच में मेरे और आपके आका बैठे हुए हैं लेकिन वो औरत नज़र नहीं आई। मेरे आका ने मालूम किया, ओ अल्लाह के नेक बंदो, वो कहाँ है जो सफाई करने के लिए आया करती थी। अल्लाह के नबी आप क्यों पूछ रहे हैं उसे, वो एक सफाई करने वाली गरीब सी कमज़ोर सी काली सी कलौटी सी एक औरत, अल्लाह के नबी आप क्यों से मालूम करना है। चुनाचे मेरे और आपके आका ने मालूम किया, क्यों ना मालूम करूँ वो मेरी मस्जिद की सफाई करती है, क्यों ना मालूम करूँ अल्लाह की नज़रों में उसकी बड़ी कदर है। सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी गुस्से में हो रहे हैं, चुनाचे फरमाया नबी अल्लाह आप नाराज ना हो, वो औरत दुनिया से रुखसत हो चुकी है, वो औरत दुनिया से जा चुकी है। कहा कि उसकी कब्र कहाँ है, कहाँ रहती है, किस जगह दफनाया गया। चुनाचे मेरे आका को कब्र के हालात मालूम किए गए, बताए गए। चुनाचे मेरे और आपके आका अपने सहाबा को लेकर वहां पहुंचे, पहुंच करके उसकी कब्र पर जाकर के मेरे आका ने नमाज पढ़ाई है। अल्लाह हो सकता है मेरे नमाज पढ़ाने की बरकत से इसकी मगफिरत कर दे। आज मेरी और आपकी नज़रों में क्यों कीमत घटती हुई जा रही है अपने मातहतों की, अपने से नीचे काम करने वालों की। इसलिए मेरे भाई आप अल्लाह ने कुछ लोगों को गरीब बना दिया है, कुछ लोगों को कमज़ोर बना दिया है और कुछ लोगों को मालदार बना दिया है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि ये ज़िंदगी भर ऐसा ही चल सकता है। नहीं, अगर मालदार अकड़ में रहेंगे, तकब्बुर में रहेंगे और गरीब सब्र करेंगे तो मेरा अल्लाह उन मालदारों से छीन कर गरीबों को अता कर देगा, उन मालदारों से छीन करके कमज़ोरों को अता कर देगा। उन मालदार और मेरे अल्लाह ने ऐसा करके दिखाया है और आज भी होता रहता है। मैं और आप अपनी नज़रों से देखते रहते हैं, वक्त के मालदार हैं, लोग उनकी बड़ी कदर करते हैं, लोग उनको सलाम करते हैं, लोग उनको मशवरे में बुलाते हैं, लेकिन क्या हुआ आज
ان کے حالات بد سے بدتر ہیں، آج ان کے پاس کچھ نہیں ہے، آج ان کے حالات دیگر گوں ہو چکے ہیں، کیونکہ میرے اللہ کے یہاں دنیا میں دی ہوئی چیز کوئی دائمی نہیں ہے۔ میرا اللہ جب چاہے چھین سکتا ہے اور جب چاہے دے سکتا ہے۔ اس لیے مالداروں کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اپنی زبان کے اندر نرمی رکھنی چاہیے، اپنے دل کے اندر نرمی رکھنی چاہیے، اپنی چال کے اندر نرمی رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے غریبوں کو صبر کرنا چاہیے۔ جو مالدار اپنے دل میں نرمی رکھے گا، اپنے مزاج میں نرمی رکھے گا، اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا، اور جو غریب صبر کرے گا اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ لہذا جنت دونوں کی ہے، لیکن جس کے اندر بھی تکبر آ گیا، لہجوں میں بناوٹ آ گئی، اور اپنے سے ماتحت لوگوں کو اس نے ستانے کی کوشش کی، کمزوروں کو ستانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی، میرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے یا اس کے ملنے والوں سے سب سے جہنم کو بھر دے، سب کو جہنم کے اندر ایک ساتھ ڈال دے۔ اس لیے ہر وقت مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے لہجوں کو خاص طور سے، اپنی باتوں کو خاص طور سے، اپنے آپ کو خاص طور سے، اپنی بات کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ جو بھی سب کا مشورہ اسی پر عمل کریں، جو بھی سب کی رائے ہو اسی پر عمل کریں، جو سب کا معاملہ اسی پر چلتے رہیں۔ اگر ہٹ دھرمی دکھائیں گے، تکبر دکھائیں گے، تو میرے اللہ کی لاٹھی میں بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ آواز نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو غریبوں کی، کمزوروں کی، اپنے ماتحتوں کی، علماء کی، اللہ سب کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنے لہجوں کو اللہ درست فرمائے۔ اسی لیے یہ چوتھی بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ روزی میں برکت دے تو غریبوں کی عزت کرو، کمزوروں کی عزت کرو، اپنے سے نچلے لوگوں کے ساتھ عزت کا اور قدر کا معاملہ کرو۔ انشاءاللہ میرا اللہ خوب ترقی کاروباروں میں بھی دے گا، اور میرا اللہ خوب ترقی آپ کی روزیوں میں بھی دے گا۔